So, good evening, everyone. So, I can say, this is the penultimate round or penultimate series on World Trade Organization. By this time, we have understood the essence of trade. In the very first class, we talked about the right essence of trade and how trade benefits everyone. How, in fact, gradually, how the trade has been used as a means of economic development, both by the developed country as well as the developing countries. We saw after the conclusion of your World War II, right? In the Bretton Woods meeting, everybody, in fact, the Axis power, at least the developed economy, at least they understood, yes, the steps that we had taken, all the protectionist that step that we had taken during the Great Depression, that have backfired, and ultimately that resulted into a great economic depression. In fact, the impact of Great Depression that was supposed to be of around 2 to 3 years, it was stretched beyond 15 years, and that ultimately happened with right the World War II. So they tried to form a kind of organization or a multilateral body that would facilitate international trade, because everybody had understood by that time trade is something that will actually lift up everyone. अगर किसी का इकोनॉमिक प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी उतना ढंग का भी नहीं भी चल रहा है, बट जो सारे कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, यू माइट नॉट बी इन ए पोजीशन टू एक्सपैंड योर बेस, बट द एरिया जो जिसमें आप लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव कोई एक कंट्री है, they can thrive to certain extent by exporting things. And because of those, right, protectionist principles or laws, right, we saw the biggest law to be Smoot-Hawley Act of United States 1930, they need to be lessened out. In fact, the gravity of those laws need to be lessened out to facilitate a open and a transparent trade. So they tried forming International Trade Organization in 1930 or 1947, but they failed miserably, because out of 56 countries, 3 prominent countries, out of which US was a party, they didn't ratify, right? उन्होंने अपना right सहमति नहीं जताया ITO के फॉर्मेशन के लेके, because the terms and condition वहाँ पे जो सेट किए गए थे, शायद that was not in their national interest. So kindly mute yourself. थोड़ा आप mute कर ले. Roshan, whenever it is required, you can unmute. Yes. So Roshan, please mute. Okay. So, and after that, जो भी सारे देश बचे हुए थे, 23 मेजर पावर्स उन्होंने फॉर्म किया, राइट? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. They tried to negotiate. They had lot many rounds. They had lot many rounds. I have muted you all. You can unmute your end from only when I allow. Okay. So after the formation of General Agreement on Trade and Tariff in 1948, it came off in 1st January 48. There were around 8 rounds of, right, that they are called as the trade rounds, and we saw it started with the Geneva round with something called as your Havana Charter, and right, John Maynard Keynes actually drafted that charter. Under his guidance, the entire thing was drafted. Then we had a round in France called an Annecy round. Then again, right, Dillon. Then by the end of the Kennedy round, the developing countries which felt completely neglected by that time, till at least 1962, they got their voice. And after Kennedy round, there came your Tokyo round, wherein certain qualitative aspects of trade, for example, what we call as non-tariff barrier, or in fact voluntary restriction in exports, ये दोनों चीजों के ऊपर बात हुआ. And ultimately the most ambitious round, that was called your, right, Uruguay round, or what we call popularly as Uruguay, or 8th round of, right, trade round, जो कि उरुग्वे में हुआ था, that, right, got everything reformed and everybody is as ambitious. In fact, the great trade off जो हम कहते हैं, right, the great bargain जो हम कहते हैं between the two blocks, one is your developing countries, the other one was developed. There was a great bargain. On one aspect, developed countries every time pursued or insisted to include services, capital, intellectual property right into the frame of discussion within WTO. That was agreed, that was accepted or compromisingly accepted by the developing nations. And again,
The points or the concern of developing nations, like your agricultural and other primary goods, just like your fiber and everything, they were also considered or compromised and compromisedly accepted by the developed nations. So there was a great bargain, or we can say कि mutual consent के बाद we took everything, because everybody knew कि we need, by the Kennedy round it was very clear, because Dhillon round we saw one thing, right? We went for item to item kind of tariff ratification, and that was a very laborious process. And by Uruguay round, we were everybody, almost everyone, whoever was involved, 123 nations were involved in that round. They were very sure, right? Yes, we need to go for a multilateral body or an organization. What is the basic difference between, or the structural difference between GATT and WTO? GATT was purely a contract or an agreement. There was no body or its own secretariat or its manpower. Even GATT didn't have any sort of enforcement authority, which were all added up to form a multilateral body, जिसको हम आज के डेट में WTO के हिसाब से जानते हैं. So now, by the formation of WTO, all the जो ट्रेड राउंड गैट्स के अंदर था, they became ministerial conferences. So ट्रेड राउंड्स भी होते हैं WTO के अंदर, और ministerial conferences भी होते हैं. And that's why ministerial conferences they happen every 2 years. हर 2 साल में एक बार होता है. और जो राउंड ऑफ डिस्कशन, अगर नेगोशिएशन की बात अगर करें, आज तक एक ही राउंड हुआ है, एंड दैट्स येट नॉट कंक्लूडेड, उसको हम दोहा राउंड कहते हैं. देयर हैव बीन लॉट मेनी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, राइट? वी विल बी नेमिंग देम इन फैक्ट, राइट? क्योंकि हर एक कॉन्फ्रेंस का एक राइट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वहां से क्या इवॉल्व होके आया. बट यस, अगर ट्रेड राउंड्स की बात करें, अगर नेगोशिएशन राउंड्स की बात करें, आज तक डब्ल्यूटीओ में सिर्फ एक ही राउंड हुआ है, एंड दैट हैज नॉट येट कंक्लूडेड, एंड दैट्स कॉल्ड योर दोहा राउंड, जो कतार में हुआ था. So now let's go back straightforward to what are the various agreement. WTO जो है body है, it is guided by certain list of agreements that caters to different areas of trade. Trade के जो different areas हैं और areas of concern हैं, not just about it is about primary or secondary goods, rather about issues pertaining or issues coming out of trade, international trade, right? So there are list actually. In fact, we should be at least right. We should be very clear about 4 or 5 right agreements, but we should at least once at least we should have the list of those and what do cater to. So I'm switching to the tablet mode. I'll be writing something for your purpose. So if you have any concern, I have muted you all actually. So if you have any concern, आप मुझे पूछ सकते हैं, right? You can ask me, or you can also just a second. I hope the screen is visible to all of you. अगर कोई क्वेश्चन है आपका, मैं आपको अनम्यूट तो कर ही दूंगा, राइट? मैं कर ही लेता हूँ. तो जो भी सारे लोग हैं, राइट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? मैं अभी अलाउ कर दिया आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए. वन नीडेड आप अनम्यूट करें, जब नीड ना हो प्लीज म्यूट रहें, सो दैट आपका बैकग्राउंड नॉइज हमें डिस्टर्ब सबको ना करे. सो इट्स क्वाइट इजी. जो लोग थोड़ा जूम में नए हैं, थोड़ा कंसर्न हो सकता है, बट इट्स क्वाइट इजी, कुछ टफ चीज है ही नहीं. सो लेट्स स्टार्ट देन. So we'll be starting with the agreements, all the agreements. I hope it's visible, right? Yes, sir. Agreements made in Uruguay round for functioning of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट बना, सो देयर वर लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट. बस एक ही एग्रीमेंट से नहीं चलाए, राइट? डब्ल्यूटीओ बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स थे. सो विल बी टेकिंग देम वन बाय वन टुडे. हम एक के बाद एक बात करेंगे उनके बारे में. सो जो सबसे पहले जो था, राइट, द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला जो था, फॉर एग्जांपल
That was, can somebody tell me what was the very first thing एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो पहला एग्रीमेंट है व्हिच इज ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यस और नो? ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, क्लियर? एंड दिस इज पर्टिकुलरली, इसमें एक सबस्क्रिप्ट भी यूज किया जाता है, दैट इज 1994, बिकॉज जीएटीटी और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ये पहले तो बन गया था, बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने में जो एग्रीमेंट फाइनली चेंज होके और मॉडिफाई होके एक्सेप्ट किया गया, दैट्स कॉल्ड एज योर गैट 1994, बिकॉज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ तो 1948 से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, we brought in lot many changes, and that final agreement is called as your general agreement on trade and tariff, and this got subsumed into world trade organization. तो हमने GATT को डिसकंटिन्यू नहीं किया, इससे पहले this was the body, actually it was a body or a agreement that was perceived to be a trade negotiating body, but now the primary body is World Trade Organization, जिसके अंदर एक एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट का नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड 1994. एंड व्हाई दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज in fact the entire agreement, जो existing agreement था, उसको पूरा रिवैम्प किया गया. Is that clear to all of you? I hope everybody is comfortable with this. There should not be any confusion. Yes, sir. Clear? तो इसके अंदर क्या सारे चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कुछ है इनके अंदर जिसके बारे में आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. क्लियर? सबसे पहले इसके अंदर एक है आर्टिकल 2, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल 2. ये गैट के अंदर एक आर्टिकल 2 है, और ये क्या दिखाता है आपको, ऑल द शेड्यूल ऑफ कॉन्सेशंस. ठीक है? जब एग्रीमेंट बने, टेकिंग ऑफ डिफरेंट केसेस, बहुत सारे कॉन्सेशंस इशू किए गए थे, और डिफरेंट जो कॉन्सेशंस हैं उनके पूरा का पूरा लिस्ट है आर्टिकल 2 में है. एंड व्हाट डज दैट एक्सप्लेन? एग्रीमेंट टू रिकॉर्ड इन नेशनल शेड्यूल्स other duties and charges levied in addition to the recorded tariff and to bind them at the levels prevailing at the date established by the Uruguay Round Protocol. Clear? Kindly मैं स्क्रीन में थोड़ा आप लोग कुछ ना लिखें, right? Somebody is using the screen also to write. I need to control many things, because please stay away from your screen. बस देखें स्क्रीन को, because आप जब लिखेंगे please remove that. Okay, हाँ, that's fine, because we are recording the session actually for your reference only. Next is, there is another concern that you should also understand. जब tariff और trade barriers हमने हटाए, there could be a situation जहां पे एक देश को, राइट, एनी पर्टिकुलर कंट्री का बीओपी का सिचुएशन खराब हो, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन खराब हो, और रिएक्टिंग टू दिस डिग्रेडिंग सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे हो गया एंड यू आर हेडिंग फॉर ए क्राइसिस, फॉर एग्जांपल, राइट, आपने कुछ क्राइसिस की तरफ अगर आप हेड कर रहे हो, और इन ऑर्डर टू बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी का सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, नॉट टू इंप्रूव, rather to save yourself or a country from crisis, generally you could take steps. Roshan, please, Roshan, I will have to, in fact, right, please कोई screen में ना लिखें आप, because this is disturbing actually, because the screen would be visible to all of you. Please wipe it off. Please. Okay, stay away from screen, or else I will have to remove you from the class. Okay, so the BOP crisis को
मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होते हैं, राइट? इफ यू आर, अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है, एंड जिन लोगों को बीओपी के रिगार्डिंग पता नहीं है, मैं बस सिंपल इंफॉर्मेशन थोड़ा दे देता हूँ। जब आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है देन योर एक्सपोर्ट्स, राइट, आपको ये इंपोर्ट का बिल चुकाने का सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी मोर मनी और फॉरेन करेंसी टू पे इट ऑफ। तो जब बीओपी का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस सिचुएशन आता है, जनरली वी गो फॉर सर्टेन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, यस और नो? जनरली कोई भी कंट्री चाहेगा कि मेरे थोड़े इंपोर्ट्स कम हो जाएं, सो दैट आई एम नॉट रनिंग इनटू ए क्राइसिस, यस और नो? आई होप एवरीबॉडी इज फॉलोइंग। किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ सकता है, आप कैप्टिव, राइट, आप ऑनम्यूट कर सकते हो। Those who have basic idea about balance of payment, जब हमारा import बहुत ज्यादा हो जाता है than your export, then there could be a situation जब हम import के bills pay करने लायक ना रहे, because we generally have to pay our imports in foreign currency, और हम foreign currency print नहीं कर सकते। We have to earn foreign currency from exports and we have to pay for our imports. So when imports are skyrocketing and our exports are not that competitive, then what would happen automatically? We might run into a balance of payment crisis. तो ये जो crisis situation में बचाने के लिए कोई एक country, there could be certain quantitative trade restrictions, yes or no? For example, इंडिया में बहुत ज्यादा ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वी इंपोर्ट a lot of gold, क्लियर? तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन खराब होगा, वी वुड पुट अप सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, यस और नो? मन करेगा, राइट, द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री वुड फिक्स अप सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, यस और नो? Yes, sir. क्लियर? बट वी हैव ऑलरेडी साइंड इनटू द एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ कि हम लोग कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे। आर यू गेटिंग इट? सो हियर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे आता है पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। सो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि जब, सर हिंदी में बोलिए। हाँ रोशन, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, राइट, आई यूज ए लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मिला के बोलता हूँ, सो दैट एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आता है, फॉर एग्जांपल, उस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी देश जो भी होता है, दे पुट अप सर्टेन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, वो राइट इंपोर्ट करने में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। लेकिन जो कंट्री ऑलरेडी डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसने ये माना हुआ है कि कोई भी किसी भी तरह का मैं डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेड डिस्टॉर्ट करने वाला मैं करूंगा नहीं। तो हियर कम्स द कॉन्फ्लिक्ट, यहीं पे राइट इशू आ जाता है। तो यहाँ पे कर क्या सकते हैं? यू हैव बीन गिवन सर्टेन एग्जेम्पशंस। अगर आप कोई स्टेप, आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए कोई ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, राइट, यू हैव बीन अलाउड सर्टेन एग्जेम्पशन, क्लियर? तो ये जो एग्जेम्पशन अलाउड हैं, एटलीस्ट देखिए क्या सारे एग्जेम्पशन हैं, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना। वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन डिटेल्स एक्चुअली, बट यू शुड नो, यस, देयर कुड बी ए विदरिंग बीओपी सिचुएशन जहां पे एक देश को ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़े, एंड दे आर नॉट ऑल आर अलाउड इन फैक्ट, बट यस देयर आर सर्टेन कंफर्टेबल एग्जेम्पशंस, कुछ कंफर्टेबल एग्जेम्पशंस अलाउ किए गए हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? देखिए यहाँ ये सारे इश्यूज ना आपको जानना थोड़ा जरूरी होता है, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। हमने डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट साइन किया हो कि हाँ ट्रेड हम रोज, राइट, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो फेयरली हम होने के लिए अलाउ करेंगे, बिकॉज वी हैव एग्रीड अपॉन। बट जब मेरा बीओपी का सिचुएशन खराब हो जाएगा कोई देश का, तो ऑटोमेटिकली आई एट टाइम्स आई माइट हैव टू गो फॉर सर्टेन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, यस और नो? And that will be again, right, going against the rules of WTO. So am I allowed, a country is allowed or not? That's the question. Yes, the country is allowed with certain exemptions. कुछ exemptions तो हैं। Clear? I will provide you notes in detail for your future reference. अगर आप चाहें तो उसके details भी पढ़ सकते हैं। Okay? So this is all about. Next is something called as GATT का 1994 का पूरा कहानी गया, for example. Next, the second agreement that was put in place is called as your, the second agreement जो है, second जो agreement हम बात करेंगे आज, that's called as agreement on agriculture, agreement on agriculture, and that's called as AOA, ठीक है? सी, जो हमने देखा उरुग्वे राउंड में जो ग्रेट बार्गेन हुआ, फॉर एग्जांपल, दिस वाज द स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ द केन्स ग्रुप, यस और नो?
केन्स ग्रुप का ये स्टैंडिंग था, द केन्स ग्रुप एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज, ये और नो, डेवलपिंग कंट्रीज और जो केन्स ग्रुप हमने बात किया 14 कंट्रीज जो कि जनरली एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करते हैं, और द एंटायर ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, एवरीवन, राइट। इनका मेजर कंसर्न यही था बिकॉज जो भी सारे डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां से जनरली जो एक्सपोर्ट्स होते हैं या तो वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होते हैं या फिर वो प्राइमरी गुड्स होते हैं। सो दिस वाज परहैप्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज पर, क्योंकि इससे पहले बिफोर दिस उरुग्वे राउंड एग्रीकल्चर के बारे में देयर वाज नो डिस्कशन एट ऑल। टेक्सटाइल के बारे में थोड़ा बहुत तो बात हुआ था एटलीस्ट, यस और नो, because after the inclusion of Japan into GATT in 1955, right, Japan pressed upon and we had a certain agreement at least relating to textile and fibers, but agriculture ke regarding it was complete stalemate tha. So the Uruguay round opened up everything so that we should have a comprehensive policy on trade in agricultural items. क्लियर। एंड एज ऑफ नाउ अगर आज के डेट में दोहा राउंड अगर अनकंप्लीट चल रहा है, अगर दोहा राउंड मतलब कंक्लूड ही नहीं हो रहा है, देयर इज नो कंक्लूजन एज ऑफ नाउ ऑफ दोहा राउंड, ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंशियस इश्यूज आर रिलेटिंग टू दिस एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। आया समझ में? ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, दिस इज द प्राइमरी एरिया जिसके अंदर सारे के सारे कंफर्टेबल नेगोशिएशन नहीं होने के कारण ये दोहा राउंड आज तक कंक्लूड नहीं कर पाया है। एंड इन फैक्ट टुमारोज क्लास, हम कल के क्लास में विल टॉक अबाउट दीज ऑल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक। क्लियर? देयर आर सर्टेन परसीव्ड कॉन्स्पिरेसी आल्सो, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में है which would in fact add value or add interest to this particular, ये थोड़ा टाइम में बात थोड़ा बोरिंग लगता है but I will tell you, right, just for your hint, it is assumed that, ये assume किया जाता है that the managing director of a company called as Cargill, ये कंपनी किन को पता है? the company called as Cargill, it's a very big company, right? Divya Swarupa, you must be knowing, right? This company produces Yes, sir. seeds, they produces fertilizer, right? So this, Sites also. yes, so ये जो कारगिल कंपनी है, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, दिस ए कमर्शियल बॉडी, राइट, इट्स अ कमर्शियल बॉडी, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू थिंक, ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर था, इसको ड्राफ्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एमडी को देना चाहिए था? It was a intergovernmental contract, so the draft of this agreement on agriculture should have been made by policy specialist, not by somebody who is already heading a right business of that particular domain. Yes or no? Conflict of interest है कि नहीं? But it is assumed, there is a person called as Dan Asmuth. I do not remember the spelling actually. He was the right MD or CEO of Cargill Group. It is assumed that he only drafted the agreement on agriculture. So this is a theory, it is not proven, but it's a conspiracy theory related to it. Very very interesting topic because बहुत सारा क्वेश्चन ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर आता है, because this is the most contentious issue pertaining to, right, the stalemate that is happening, right, दोहा राउंड का पूरा जो कहानी है। क्लियर? आया समझ में? ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसके अंदर देयर आर सर्टेन इश्यूज, समथिंग कॉल्ड एज मार्केट एक्सेस, इसके अंदर मार्केट एक्सेस की बात है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसपी और स्पेशल प्रोडक्ट्स, we'll talk about them in detail because questions यहीं से आएंगे। there is something called as aggregate measures of support, AMS कहा जाता है, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा MSP का मैकेनिज्म आता है। और aggregate measures of support में there are certain, right, सब्सिडी के बारे में बात करेंगे, and there are certain subsidy and something called as boxes. All the subsidy, they have been grouped into three kind of boxes. One is called as your green box subsidy, the other one is called your blue box subsidy, the third one is called as your amber box subsidy. तो डिफरेंट जो सब्सिडीज हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडी, उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। क्लियर? इनफैक्ट नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर, एंटायरली जो सब्सिडी का बात है,
सारे के सारे सब्सिडीज उनको क्लासिफाई करने पड़ते हैं इधर इनटू ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। तो ये सारे हैं क्या? व्हाट आर दीज? ग्रीन बॉक्स, ये जो सारे सब्सिडीज होते हैं दे आर जनरली गिवन विथ कंसर्न टू द एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड। एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड का प्रोटेक्शन के लिए जो सारे सब्सिडी देते हैं उनको हम ग्रीन बॉक्स कहते हैं। एंड दे आर नॉट एट ऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं है, दे डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड, वो ट्रेड के झमेले में नहीं आते बिकॉज दे डू नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रेड। जो फेयर ट्रेड होना हो, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एनवायरनमेंट और राइट लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। दे आर नॉट एट ऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड हेंस ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आर अलाउड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो होता है उनका पर्पस रहता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल, और दे आर नॉट एट ऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एंड दे आर अलाउड। इनफैक्ट आज के डेट में इंडिया एग्रीकल्चर डोमेन में जो भी सारे सब्सिडीज दिया जा रहा है वो सारे के सारे ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज में आते हैं। बट यस, व्हाई रिसेंटली वी हैड टू राइट गो फॉर दैट पीस क्लॉज? ये जो एग्रीमेंट एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट में आज पर द बैली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हमने रिसेंटली एक पीस क्लॉज इशू किया था, राइट? वी हैव द राइट, हमारे पास वो राइट अभी है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव समथिंग, सम राइट एक्चुअली। We'll talk about that in detail actually कि पूरा करवा mechanism कैसे चलता है, but let us be very familiar with these terms at least. Next, blue box subsidies are those subsidies which are provided, which are used to limit the production of something. किसी भी एक चीज का प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए, in order to limit the production of something, we use जो सारे सब्सिडीज होते हैं उन्हें ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। They are somewhat trade distorting. They are somewhat trade distorting, मतलब ट्रेड ये लोग थोड़ा बहुत डिस्टोर्ट करते हैं, but they are still allowed. ब्लू बॉक्स सब्सिडी अलाउड है, वो थोड़े बहुत ट्रेड डिस्टोर्टिंग होते हैं। एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी कौन कैटेगरी के सब्सिडी हैं? जो सारे सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड किसी भी एक चीज का प्रोडक्शन में लिमिट लाने के लिए, in order to bring in or in order to limit the production of something, जो सब्सिडीज लगाए जाते हैं वो सारे कहते हैं आप ब्लू बॉक्स सब्सिडी। नेक्स्ट कम्स द डेडली एम्बर बॉक्स सब्सिडी। डेवलप्ड इकोनॉमी जो सारे हैं इनका एक्चुअलीस हिल, और इनफैक्ट इनका हमेशा जब भी राउंड टेबल बैठता है डिस्कशन के लिए, हमेशा दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज सब्सिडीज। ये एम्बर बॉक्स सब्सिडीज है क्या? These subsidies are the subsidies which are provided to expand the production of something. To expand the production of something. किसी भी एक चीज का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए जो सारे सब्सिडीज दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी किसी भी चीज का प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए दिया जाता है, whereas amber box subsidies are provided purposefully to expand the production of something, and amber box subsidy are completely trade distorting. ठीक है, ये amber box subsidies जो हैं वो completely trade distorting हैं, and these kind of subsidies are not allowed as per the WTO regime. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, how this subsidy impact the international trade. दो देश हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंट्री ए एंड देयर इज अ कंट्री बी, एंड बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस वन पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान के चलते हैं बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस राइस, दोनों के दोनों कंट्री राइस प्रोडक्शन करते हैं। ये जो कंट्री के फार्मर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दे इन्वेस्ट ₹100 पर क्विंटल ऑफ राइस। उन्हें एक क्विंटल राइस, एग्जांपल ले रहा हूं, 100 रुपए में एक क्विंटल राइस कभी नहीं बन पाएगा, यू कैन नॉट प्रोड्यूस बिकॉज देयर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक छोटा सा एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, द फार्मर ऑफ कंट्री ए दे इन्वेस्ट ₹100 टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ राइस फॉर एग्जांपल। सो द फार्मर ऑफ दिस कंट्री व्हेन दे कम टू द इंटरनेशनल मार्केट, ये चलिए मान के चलते हैं दिस इज योर इंटरनेशनल मार्केट, जब ये सारे अपने सामान बेचने आएंगे, सो दे वुड प्रेफर सेलिंग, चलिए 100 रुपया खर्चा किया है, इसको मैं 120 में बेचना पसंद करूंगा टू मेक ए मार्जिन ऑफ 20%, यस और नो? एंड 20% मार्जिन इज वेरी कंसिडरेबल मार्जिन। यू कैन नॉट चार्ज वेरी हाई प्रीमियम बिकॉज देयर वुड बी कंपटीशन। कोई दूसरा होगा जो आपका सामान नहीं बिकेगा, उसका सामान बिक जाएगा बिकॉज ही विल बी चार्जिंग यू लेसर प्राइस। सो द ट्रेड हैपेंस ऑन वेरी लेसर मार्जिन। नाउ थिंक ऑफ दिस कंट्री पर्टिकुलरली, जो बी कंट्री है, इसका जो गवर्नमेंट है,
they also spend, उनका भी 100 रुपया खर्चा होता है. The farmer of country B also have to spend rupees 100 in order to produce a quintal of rice. But the government of this particular country gives a subsidy of rupees 20. 20 रुपए का सब्सिडी ये कंट्री प्रोवाइड कर देता है इन सारे फार्मर्स को. तो अल्टीमेटली इनका इफेक्टिव खर्चा कितना हुआ? 100 minus 20, yes or no? तो now they are able to produce 100 kg of rice or a quintal of rice at an effective price of rupees 80. 80 रुपया में ये यहाँ के फार्मर, उनका खर्चा 100 रुपया होता है, लेकिन उनको सब्सिडी के तहत 20 रुपया गवर्नमेंट दिला देता है. तो उनका इफेक्टिव खर्चा कितना हुआ? 80 रुपया. Now think of the farmer of country B will be in a better position in the international market. क्यों? Now they can still sell the price or the goods at rupees 100 and still make a profit of rupees 20. Yes or no? जो B countries के फार्मर होंगे, अगर वो अपना सामान 100 रुपए में बेचें, they are still making a profit of 20. So don't you think the subsidy that was provided by this particular government distorted the trade? Yes or no? ट्रेड डिस्टॉर्शन हुआ कि नहीं? I hope everybody is following, right? Yes, sir. आया समझ में रोशन अभी थोड़ा बहुत? तो ये जो सारे सब्सिडीज हैं, इन्हें हम डिफरेंट वे में क्लासिफाई इसलिए करते हैं बिकॉज डिफरेंट सब्सिडी डिफरेंट तरीके के होते हैं, उनका पर्पस अलग रहता है. डू यू रिमेंबर यू आर आस्किंग सम टाइम, सर व्हिच काइंड ऑफ सब्सिडी शुड यू बी क्लासिफाइंग दिस? Yes, sir. So you have a better clarity now. Yes, Yes, subsidy sir. could be for different purposes. It could be to maintain the livelihood of the right environment. It could be to limit the production of something, or it could also be to expand the production of something. Clear? So any subsidy that is promoted for expansion of any production of something is generally amber box subsidy है, और वो सारे के सारे सब्सिडी WTO के रिजिम में अलाउड नहीं है बिकॉज दे आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आया समझ में सबको या फिर कोई कंसर्न है? नेक्स्ट लेट्स गो टू द थर्ड एग्रीमेंट. थर्ड एग्रीमेंट इज something called as your agreement on sanitary and phytosanitary agreement on sanitary and phytosanitary measures. So can somebody explain me इसका मीनिंग क्या होता है? What do you mean when we say sanitary and phytosanitary? इंटरनेशनल ट्रेड में जो सारे रेगुलेशंस होते हैं, ये जो क्वारंटाइन वाला वर्ड आप देख रहे हैं ना, द पर्टिकुलर वर्ड क्वारंटाइन जो इतना पॉपुलर हो गया कि आज के डेट में माय इवन ग्रैंडफादर नोज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वारंटाइन. हम यूपीएससी के तैयारी के टाइम वी यूज्ड टू रीड व्हेन वी रेड अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, और मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिगार्डिंग, तो दिस वर्ड आई न्यू दैट टाइम. बट आज के डेट में बच्चा जानता है कि क्वारंटाइन क्या है. So the concept of quarantine came from these measures actually, sanitary and phytosanitary. Can somebody explain what do you mean when I say sanitary measures? This is related to hygiene, yes or no? Yes, sir. So, And what? sanitary. Yes. So sanitary refers to the fact that anything that is kept under the health and hygiene sector, Yes. and that is kept in a box in order to avoid contamination or contagious effects. Yes. That comes under the sanitary box. Okay. And very recently during this onset of the pandemic, सारे के सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मेजर कंसर्न जो था, ये सैनिटरी इशू था. yes or no? Almost all the countries, I will give you a table of, right, जो सारे इशू रेज करते हैं. when you write any country raises any issue, कोई इशू जब रेज करता है ट्रेड स्टॉप करने से पहले, बिकॉज एवरीथिंग वाज शट डाउन, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड तो पूरा का पूरा बंद हो गया था बीच में,
नाउ थिंग्स हैव रिवॉल्व, समवॉट रिवॉल्व हुआ है, बट उनका मेजर कंसर्न था सैनिटरी। एंड दूसरा, कैन समबडी एक्सप्लेन मी, यस, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन व्हेन आई से फाइटोसैनिटरी? This refers to safety of animal and plant life, ठीक है? दिस इज रिलेटिंग, इसका मीनिंग होता है सेफ्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ। कोई भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उसे हम फाइटोसैनिटरी कहते हैं। तो ये थोड़े टर्मिनोलॉजीज याद कर लें, बिकॉज यही सारी चीजें जो एग्जाम में आते हैं, यू वुड बी लिटरली सरप्राइज कि सर ये सर वर्ड कहां से आ गया। क्लियर? बिकॉज दीज आर द बर्निंग इश्यूज एक्चुअली रिगार्डिंग ये जो WTO का इशू है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ए टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, राइट, दे इन्वोक सच काइंड ऑफ प्रोविजंस। हमेशा उनका यही कंसर्न रहता है कि राइट, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो लोग प्रॉपर सैनिटरी मेथड्स, राइट, सैनिटरी मेजर्स नहीं लेते हैं, दे डू नॉट राइट टेक प्रॉपर राइट हाइजीन कंडीशन में वो लोग काम नहीं करते हैं, राइट। सो एनीथिंग दैट they will be exporting might pose certain challenge to right the plant and human life there. तो ये सारा कंसर्न उनका रहता है। तो you must be very aware about these terminology and technologies, right? Next, इसके बाद जो एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल हुआ था, फोर्थ एग्रीमेंट, it is about the decision on measures concerning the possible negative effect of the reform program. ये जो रिफॉर्म प्रोग्राम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट, जो रिफॉर्म प्रोग्राम अभी चल रहा है, दैट मींस एवरीबॉडी शुड बी रिड्यूसिंग देयर टैरिफ। तो इसका इंपैक्ट, दिस वाज एन एग्रीमेंट इन फैक्ट, द डिसीजन ऑन मेजर्स दैट जो भी सारा चीज लिया जा रहा है, तो इसका इंपैक्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDC जो कहते हैं, सबसे गरीब जो देश हैं उनका, एंड अदर कंट्रीज दैट आर नेट इंपोर्टर ऑफ फूड। ये जो दो कैटेगरी के कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री एंड जो सारे कंट्रीज नेट इंपोर्टर ऑफ फूड हैं, जो अपना नेट में वो लोग इंपोर्ट करते हैं फूड आइटम, तो इनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी एक एग्रीमेंट है। सो देयर वाज ए कंसर्न दैट दो वी आर गोइंग फॉर ट्रेड रैशनलाइजेशन or trade liberalization, but we must be every time aware, or in fact the multilateral body or the WTO must be every time aware or concerned about what possible impact that might have on the least developed countries and the countries which are net importer of food items. And every time India keeps on pressing कि इंडिया को ये कैटेगरी में भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इंडिया हमेशा प्रेस करता रहता है कि I should also be included into the net importer of food category. ये भी हमारा एक डिमांड है actually, though it sometimes looks funny actually, ठीक है, but still it's a national interest. तो हम लोग बार्गेन करके जितना बेहतर ले सकते हैं कंडीशन अपने लिए, वही बेहतर है। Yes or no? Next is the fifth agreement, that's called as your agreement on textiles and clothing. ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उसको रिफॉर्म किया गया। ठीक है, जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट था ऑलरेडी, उसे रिफॉर्म किया गया। नेक्स्ट, इसके बाद जो एग्रीमेंट है, सिक्स्थ एग्रीमेंट, इज कॉल्ड एज योर एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। दैट्स कॉल्ड एज एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ठीक है, तो जितने भी सारे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए चीजें आता है WTO के अंदर, दो मेजर हेड से आता है। सबसे पहले आता है आपका, ठीक है, एक आता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी इशू को लेके रिजोल्यूशन के लिए आता है। मतलब कोई भी डिस्प्यूट जब आता है, फॉर एग्जांपल, दे आर फ्रॉम टू मेजर एग्रीमेंट कैटेगरी, ईदर दैट इज रिलेटिंग टू सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, द अदर वन इज एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल ट्रेड बैरियर टू ट्रेड। ये जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स और डिस्प्यूट इसी ग्राउंड से आता है। एंड जो सेकंड ग्राउंड है, दैट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। यू शुड बी ऑल अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए बेसिक, कि हाँ भाई सीन क्या चल रहा है। जो नंबर ऑफ डिस्प्यूट आता है US मतलब WTO के अंदर,
सबसे ज्यादा dispute is relating to your technical barrier to trade. The second category would be your sanitary and phytosanitary. Clear? Next, we also knew जो बैरियर फॉर एग्जांपल जो ग्रेट बार्गेन हुआ, डेवलप कंट्रीज के कौन से सारे इश्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए गए? टेल मी व्हाट वेयर द इशू दैट वर रेज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री कि ये सारा चीज भी इंक्लूड होना चाहिए, तो बार्गेन में उन्होंने जीता क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यस और नो? इन्वेस्टमेंट्स, दैट मींस मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, अबाउट सर्विसेज. सो ये तीन कैटेगरी को लेके तीन प्रोमिनेंट एग्रीमेंट है. सबसे पहला जो सर्विसेज को लेके है, दैट इज कॉल्ड एज गैट्स कहा जाता है उसके, GATS. इट्स नॉट GATT. GATT इज डिफरेंट, GATS इज डिफरेंट. दैट इज, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. ये पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर का जो ट्रेड है उसके लिए एग्रीमेंट है. ओके, नेक्स्ट यू गो टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TRIPS, ट्रिप्स. ये बार बार एग्जाम में आता है. ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड राइट, ट्रेड रेगुलेशंस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, दिस इज ट्रिप्स. रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स. तो ये कैपिटल को लेके है, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड में ये एग्रीमेंट है. दिस इज अबाउट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आज आप रखें, बेसिक थोड़ा नाम आपको पता होने चाहिए. टुमारो विल टॉक एट लेंथ अबाउट दीज ऑल टॉपिक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज योर एग्रीमेंट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6. आर्टिकल नंबर 10, that was on agreement on implementation of article number 6. इसको थोड़ा ध्यान याद रखें. What is article 6? आर्टिकल 2 हमने देखा गैट के अंदर, वो आर्टिकल 2 अबाउट राइट क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंसेशंस प्रोवाइडेड. आर्टिकल 6 अबाउट इज अबाउट एंटी डंपिंग. ये एंटी डंपिंग के बारे में है आर्टिकल 6. विल रीड अबाउट इट टुमारो, नथिंग टू गो इन डिटेल. एंटी डंपिंग सबको पता होना चाहिए. ठीक है, आर्टिकल नंबर इज एग्रीमेंट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 7. ये आर्टिकल 7 क्या है? कस्टम्स वैल्यूएशन. थोड़ा बहुत याद रख लो, एक बार याद रखोगे तो राइट. क्वेश्चंस वोंट बी दैट स्पेसिफिक, उतना स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है ना, कंफ्यूज करने के लिए बहुत कंटेंट है इसके अंदर. तो एटलीस्ट इनके नाम आपको थोड़े एक दो बार आपको ये पढ़ लेना चाहिए कि हाँ दे डू एग्जिस्ट, कि वहां पे कोई नया चीज आपको ना मिल जाए. आर्टिकल नंबर 12 इज एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन. प्री शिपमेंट, कोई भी चीज जब शिप किया जाएगा उससे पहले प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के रिलेटेड में एक एग्रीमेंट भी क्रिएट किया गया. सो सी अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ एग्रीमेंट जिसको जुक्स्टापोज करके ही फाइनली हमने WTO बना. दैट मींस WTO बनने के पीछे उसके नीचे जो सुपर स्ट्रक्चर है, दीज आर ऑल द एग्रीमेंट्स. सो ये खाली बस कोई एक एरिया ऑफ ट्रेड को नहीं कैटर करता. तो दिस इज समथिंग यू कैन से World Trade Organization is a comprehensive trade regulation body or trade facilitation body. Next is there is something called as your agreement on rules of origin. तो इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं, अराउंड 15 एग्रीमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 14, योर एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीज्योर. इंपोर्ट लाइसेंसिंग का प्रोसीज्योर क्या है? एटलीस्ट मैं ये लिख क्यों रहा हूं एक बार, व्हाई एम आई राइटिंग दिस थिंग्स एटलीस्ट वंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, सो दैट आप एक बार इसको सुनो, क्योंकि कोई बुक में नहीं होता है जनरली. मैं पूरा WTO का साइट से लिख के पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ खुद भी. तो इनके बारे में थोड़ा बहुत एक बार एटलीस्ट आपके कान में रहने चाहिए कि हाँ ये सारे एग्रीमेंट्स भी हैं. नेक्स्ट इज 15 इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज. जो मैंने अभी आपको बताया, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स ये वाला एग्रीमेंट हम कल पढ़ेंगे. टुमारो विल टेक अप 5 to 6 इंपोर्टेंट एग्रीमेंट कि उनके अंदर क्या है. नेक्स्ट यू कैन से एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड, दैट्स कॉल्ड एज
योर एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड। तो ये सारे ट्रेड के इश्यूज हैं एक्चुअली, जिनको पूरा का पूरा WTO के रिजीम में हमने इंक्लूड किया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने बात किया, सर्विसेज के बारे में बात किया। नेक्स्ट, सो दिस इज और एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। आप अगर हमारा फूड सिक्योरिटी का मेजर्स देखें, if you think about the food security measures that we take in India, what do? We procure items at a higher price, yes or no? हम procurement करते हैं higher price में, that price is called as MSP. And what do we do with this? We again sell this to people, the needy people, at a subsidized rate, yes or no? 1 रुपया चावल, 2 रुपया चावल, फूड सिक्योरिटी मिशन 1 to 4। तो हम सबसे पहले फार्मर से हायर प्राइस देके खरीदते हैं, सो दैट देयर लाइवलीहुड इज मेंटेन्ड, दे गेट अ फेयर प्राइस। इट्स नॉट फेयर प्राइस एक्चुअली, समवॉट आई वुड से, being this is not right official statement, this is personal statement, me being involved in costing and calculation of agricultural commodities, right? MSP is not a fair price, clear? Now next is खरीदने के बाद, right, FCI buys and then again it sells to state government and directly to certain, right, people in the, right, vulnerable section। उन्हें हम सब्सिडाइज रेट में देते हैं, खरीदते हैं ज्यादा पैसा देके, देते भी हैं ऑलरेडी सब्सिडाइज, हेवीली सब्सिडाइज प्राइस में। सो दिस मैकेनिज्म जो है गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट का, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट है, क्लियर? सो दीज आर द एग्रीमेंट दैट गाइड्स द फंक्शनिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद वाला कल का क्लास पूरा का पूरा रहेगा अबाउट 5 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, जिनके बारे में थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर कोई कंसर्न है आपका, आप मुझे पूछ सकते हैं। सॉरी रोशन, शायद आप पहली बार एक्चुअली यूज कर रहे हैं जूम, तो थोड़ा दिक्कत होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो मैं जो पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़े इंग्लिश टर्म्स थोड़े बहुत हैं, मैं हिंदी लैंग्वेज यूज करता हूँ, उसमें कोई कंसर्न है नहीं, लैंग्वेज यूज करता हूँ, लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है ना थोड़ा इंग्लिश बेस्ड है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी टर्मिनोलॉजी थोड़ा मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, बट आप समझ पाओगे आराम से, ठीक है? सो एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी कंसर्न, यू कैन रेज, कुछ पूछ सकते हो अगर कुछ कंसर्न है तो। सो काइंडली ये जो सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, थोड़ा इनको पढ़ लें एक बार, चाहे तो 5-10 थोड़ा याद भी रख लें, बिकॉज एक बार याद रख लो तो दूसरा बार जब देखोगे ऑप्शन क्वेश्चन में एटलीस्ट, तो पता चल जाएगा यस दिस एग्जिस्ट्स, ठीक है? सो टुमारो विल टॉक अबाउट, we'll have next 2 classes. First we'll talk about important agreements, उनके अंदर कंटेंट क्या है। Then final class we'll talk about the ministerial conferences, जो WTO के ministerial conferences हैं, there is some important rounds are there actually, Cancun round, Bali round, ठीक है? ये सारे rounds हैं, वो सब क्या हैं we'll take up in the next class. So I hope all of you enjoyed. Go for a right detail में थोड़ा पढ़ें, you don't have to read from anywhere else, WTO का साइट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, I will provide you the link, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का साइट से डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं, मैं वहीं से पढ़ता हूँ, ठीक है? So that's all for today. Thank you. Good night. Stay safe. Thank you, sir.